لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ ہے سورہ بقرہ کی 183 نمبر کی آیت. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. وعلیکم السلام. اس آیت میں پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے ایمان لایا، کتب علیکم الصیام، تم لوگوں کے اوپر میں روزے کو لکھ دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طریقے سے جیسے کہ پہلے والی امتوں پہ روزے کو لکھا گیا تھا، لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ تم لوگ تقوی الہی اختیار کرو. آج کی کلاس کا جو عنوان ہے وہ ہے آثار روزہ. ابھی کل 2 دنوں میں ہم نے روزے کی حقیقت کو بیان کیا کہ روزہ دراصل ہے کیا. آج ہم بیان کریں گے کہ روزے کا فائدہ کیا ہے، روزے کا ریزلٹ کیا ہے. اب جانتے ہیں کہ ہر عبادت کا ایک ریزلٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا ریزلٹ کیا ہے؟ نماز کا ریزلٹ کیا ہے؟ کہ نماز آپ کو ہر برائی سے روکتی ہے. نماز کا ریزلٹ ہے. ہر وہ شخص کہ جو اپنی نماز کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کا کوئی ریزلٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ وہ برائیوں سے رک رہا ہے یا نہیں رک رہا ہے. اگر وہ برائیوں سے رک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز اس کی واقعاً قابل قبول ہے، نماز اس کی قبول ہو رہی ہے. اور اگر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں گناہوں کو بھی انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریزلٹ نماز کا ہے وہ ریزلٹ اسے مل نہیں پا رہا ہے. ایسے ہی روزہ ہم لوگ رکھ رہے ہیں تو ہم نے سوچا ہے کہ روزے کا ریزلٹ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ روزے کا بھی ریزلٹ ہے. کہتے ہیں کہ روزے کا ریزلٹ کیا ہے؟ آپ کو ریزلٹ لینا ہے کس کا؟ روزے کا. تو روزے کا ریزلٹ ہے تقویٰ. یہ روزے کا ریزلٹ کیا کہا تھا پروردگار عالم نے؟ ہم نے تم لوگوں کے اوپر روزے کو واجب کیا اس طریقے سے کہ جیسے پہلے والی امت کو یہ واجب کیا تھا. کیوں واجب کیا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم یہ روزہ رکھ کے کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص روزہ رکھے گا واقعاً اس کو کیا ملے گا؟ تقویٰ ملے گا. لاسٹ میں اسے تقویٰ حاصل ہونے والا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ روزے کا ریزلٹ کیا ہے؟ تقویٰ الہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سنا ہے تقویٰ تقویٰ تقویٰ، اکثر مجلسوں میں اور کلاسز میں ہم لوگ اس لفظ کو سنتے رہتے ہیں تقوی کو. اصل میں تقویٰ کیا ہے جو آپ کو روزہ رکھنے پہ حاصل ہونے والا ہے؟ وہ تقویٰ ہے کیا؟ تقوی کے میننگ کیا ہے؟ تقویٰ یعنی ایک اصطلاحی معنی کرتا ہوں، اپنے نفس کو روک دینا. کس چیز سے؟ گناہوں سے. یہ میننگ تقوی. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوپی لگا کے 24 گھنٹہ ٹوپی لگی رہتی ہے، برابر آپ اسے مسجد میں دیکھتے ہیں، برابر جو ہے اچھے کام کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو آپ کیا بولتے ہیں کہ بہت بڑا متقی ہے، کافی متقی شخص ہے. متقی کو اگر دیکھنا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے نفس کو روکتا ہے یا نہیں روکتا ہے گناہوں سے. نہیں تو صرف ظاہری لباس کو اختیار کر لینا اور لوگوں میں شو کرنا یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یعنی اپنے نفس کو روکنا. کس چیز سے؟ گناہوں سے. اب اگر آپ کامیاب ہو گئے، اپنے نفس کو روک سکے، آپ کا نفس نہ کر سکے گناہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب تقویٰ ہیں، آپ کے اندر تقویٰ آیا ہے. وگرنہ تقویٰ نہیں ہے. تو یہ معنی ہو گئے تقوی کے. تقوی کے معنی کیا ہو گئے؟ اپنے نفس کو روکنا. کس چیز سے؟ گناہوں سے. یہ معنی ہے تقوی کے. تو اب اگر پورا مہینہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور لاسٹ میں آپ کو اگر ریزلٹ دیکھنا ہو اپنے روزے کا، تو آپ اپنے نفس کے اندر جھانک کے دیکھیے کہ آیا واقعاً اب ہم لوگ اپنے نفس کو گناہوں سے روک پا رہے ہیں یا نہیں روک پا رہے ہیں. اگر روک پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے روزے نے ریزلٹ دیا. اور اگر ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی آپ اپنے نفس کو گناہوں سے نہیں روک پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے نے ریزلٹ نہیں دیا، آپ کا روزہ ریزلٹ والا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک پرانی سی بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں. روزہ، میں نے کیا کہا کہ روزے کا ریزلٹ، ہر چیز کا ریزلٹ ہونا ضروری ہے. بغیر ریزلٹ کے کوئی بھی کام کرنا بیکار ہے.
हर चीज का रिजल्ट होना चाहिए, कुछ नतीजा आपके सामने आना चाहिए। अगर आपके सामने नतीजा आ रहा है रोजे का तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। रोजे का रिजल्ट क्या है? तकवा इलाही। अब होता उमूमन ये है कि माह मुबारक रमजान में तो आप अपने नफ्स को रोक लेते हैं किसी भी तरीके से। अब चाहे वो माहौल की वजह से या किसी और चीज की वजह से आप रोक लेते हैं, यानी गुनाह को अंजाम नहीं दे रहे हैं। आप मिसाल के तौर पे गाना नहीं सुन रहे हैं, आप फिल्म नहीं देख रहे हैं, और दूसरी जो बुराई है उन कामों को अंजाम नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही माह मुबारक रमजान खत्म हुआ और दिन आता है कौन सा? ईद का। अब ईद के प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में क्या शामिल होता है? अब ईद का प्रोग्राम आपने बनाया है। ईद का प्रोग्राम सबसे पहले दूसरा शो देखेंगे फिल्म का, कौन सा? 3 से 6। जो कॉमन बात है वो मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। एक शो आपको देखना है 3 से 6 का, यानी परवरदिगार आलम ने इस पूरे महीने में आपको बांध के रखा हुआ था, है ना? आप बंधे हुए थे। जैसे ही माह मुबारक रमजान खत्म हुआ, सबसे पहले आपके सामने क्या है? फिल्म देखनी है, मूवी देखनी है आपको, है ना? उसके बाद में और जो काम आप नहीं कर पाए वो कामों को आपको अंजाम देना है। तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके रोजे ने रिजल्ट नहीं दिया। रोजे का रिजल्ट तकवा था। तकवा यानी अपने नफ्स को रोकना। अब आपको देखना यह है कि वाकई अगर माह मुबारक रमजान के बाद आप अपने नफ्स को रोकने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब यह है कि वाकई आपने रोजा रखा। उम्मन जो जमाने में राय जो चीज कि माह मुबारक रमजान में मस्जिदों की हालत आप ये देखते हैं, मस्जिदें भरी होती हैं, जो हमेशा का नमाजी है उसको जगह नहीं मिलती, वो पीछे चला जाता है, और जो नए नए नमाजी आते हैं वो सारे सामने की सफों में, यहाँ से लेके वहां तक सब सामने की सफों में रखे होते हैं। अब अगर आपको ये देखना हो कि वाकई उनका रोजा कामयाब था या नहीं था, जिन लोगों ने पूरे माह मुबारक रमजान में रोजा रखा, उस दिन आप नमाज जोहर में आएगा, नमाज जोहर में मस्जिद में कितने अफराद आपको मिलते हैं नमाज जोहर में मस्जिद में? 2-4 अफराद। वो जो मजमा पूरा जमा था माह मुबारक रमजान में, वो मजमा कहाँ गया? कहाँ गए वो अफराद? क्यों? उनके नफ्स ने उनको मस्जिद तक नहीं लाया। तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ भूखे और प्यासे थे पूरा महीना, रोजा उन्होंने नहीं रखा था। अगर वाकई वो लोग रोजा रखते और अगर वाकई उनका रोजा रिजल्ट देने वाला होता तो आज आपको ईद के दिन भी नमाजी उतने ही मिलते जितने माह मुबारक रमजान में मिले थे। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग रोजा रख तो रहे हैं, लेकिन रोजे का जो रिजल्ट होना चाहिए वो रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहा। तो रोजे का रिजल्ट मैंने क्या बताया? रोजे का रिजल्ट है तकवा। तकवा यानी क्या? यानी अपने नफ्स को रोकना गुनाहों से। ये देखिए, ये हो गई बात हमारी कंप्लीट यहाँ पे। अब कहते हैं कि रोजे में, रोजे से तकवा आता है। तकवा आता है यानी क्या? यानी आप गुनाहों से बचते हैं। गुनाह उम्मन 2 चीजों से ज्यादा सरजद होते हैं। गुनाह के असबाब, गुनाह के असबाब 2 हैं, गजब, शहवत। ये 2 चीजें ज्यादातर जो गुनाह इंसान अंजाम देता है वो 2 चीजों की वजह से अंजाम देता है। पहली चीज है गजब, दूसरी चीज है शहवत। ये 2 चीजें जब इंसान पे गालिब आती है तो ज्यादातर जो गुनाह अंजाम देता है इंसान इन्हीं 2 चीजों की वजह से देता है। जब गजब में आ जाएगा, गुस्से में आ जाएगा बहुत ज्यादा, तो शैतान उस पर हावी हो जाता है, फिर उससे गुनाह सरजद होते हैं। या जब शहवत उस पर गालिब आ जाती है तब जाके वो गुनाहों को अंजाम देता है। और रोजे की एक खासियत है, रोजे की खासियत क्या है कि रोजा गजब को भी कंट्रोल करता है, रोजा शहवत को भी कंट्रोल करता है। जो इंसान रोजादार होता है वो गजब भी उसका कंट्रोल में आ जाता है, उसकी शहवत भी कंट्रोल में आ जाती है। और जब ये दोनों चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं तो इंसान फिर क्या हो जाता है? गुनाहों से दूर हो जाता है। इसीलिए माह मुबारक रमजान में इंसान जो गुनाह नहीं करता है उसकी वजह यही है कि रोजा जब रखता है तो परवरदिगार ने रोजे में खासियत ये रखी है कि ये 2 चीजें कंट्रोल में आ जाती है रोजेदार की, शहवत और गजब। तो शहवत तो आपने देखा उम्मन लोग इस पे कंट्रोल पा लेते हैं, लेकिन गजब भी परवरदिगार ने रखा है। उसने क्या कहा परवरदिगार ने कि जो शख्स रोजा रखेगा मैं उसके गजब को भी कंट्रोल करूंगा। लेकिन जैसे ही शाम में 5 बजते हैं क्या होता है कि ये चीज जो कंट्रोल थी वो अनकंट्रोल हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है। इंसान
ज्यादा तर गुस्सा माह मुबारक रमजान में करता है। क्यों? इसलिए कि रोजे के जो असरात उसके ऊपर गालिब आने चाहिए, वो रोजे के असरात उस पर गालिब नहीं आते, बल्कि वो शख्स, उसका नफ्स जो है वो गालिब आ जाता है किस पे? रोजे पे। जबकि रोजा नहीं लगना चाहिए, इंसान को रोजा नहीं लगना चाहिए। इंसान को रोजा कब लग रहा है? शाम में, जब ज्यादा भूख और प्यास का उसको गलबा हो रहा है। जबकि परवरदिगार ने क्या कहा कि मैं जो शख्स भी रोजा रखेगा मैं उसकी दो चीजों को कंट्रोल कर दूंगा, एक तो गजब को कंट्रोल कर दूंगा, एक तो शहवत को कंट्रोल कर दूंगा। तो क्या वजह है कि इंसान का गजब कंट्रोल में नहीं आ रहा है? इसका मतलब है कि कहीं खराबी है रोजे में, कहीं कोई नक्स पाया जा रहा है रोजे में जो हमारा गजब कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो दो चीजें होती है गुनाह की, दो सबब होते हैं गुनाह के, एक तो गजब और एक तो शहवत। और रोजा रखने की वजह से दोनों चीजें कंट्रोल में आ जाती है, इसलिए इंसान गुनाह नहीं करता है। और सबसे अहम चीज ये बात हो गई यहां तक। अब आइए गुनाह के असबाब भी हमने बता दिए। रोजा खालिस तरीन इबादत, क्यों? इसलिए कि रोजा रिया यानी दिखावा, रोजा रिया से पाक होता है। क्यों रोजा रिया से पाक होता है? इसलिए कि इंसान नमाज पढ़ने खड़ा हुआ जब, तो लोग उसे देख रहे हैं कि ये शख्स नमाज पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप रियाकारी कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आप किरात करें, कहें कि लोग यार मुझे देख रहे हैं तो मैं बेहतरीन किरात करूं ताकि लोगों को लगे कि यार ये बहुत अच्छी नमाज पढ़ता है, रुकू अच्छा कर रहे हैं लोग। उसी तरीके से दूसरी इबादत है रोज नमाज है, खुम्स है। खुम्स में भी दिखावा हो सकता है। मिसाल के तौर पे लोगों को दिखा के देना, देखो इतने पैसे मैंने खुम्स के दिए, इसमें भी दिखावा है। ज़कात में भी दिखावा हो सकता है। और दूसरी जो इबादतें हैं उन तमाम इबादतों में दिखावा हो सकता है। जिहाद में दिखावा हो सकता है, लोगों को दिखा के जिहाद पे जाए, तमाम इबादतों में दिखावा है। लेकिन जब रोजा रखता है इंसान, तो बताइए रोजा को कैसे दिखाएगा? वो रोजे को कैसे दिखाएगा, कैसे शो करेगा रोजे को? रोजे को शो करने का कोई वसीला नहीं है, कोई रास्ता हमारे पास में नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि इंसान नमाज में रियाकारी कर जाए, खुम्स में रियाकारी कर जाए, ज़कात में रियाकारी कर जाए, जिहाद में रियाकारी कर जाए, लेकिन रोजे में इंसान रियाकारी नहीं कर पाता। रोजे में आप अपने दोस्त से ये कहते हैं कि यार तेरा रोजा जो है वो 90% है, मेरा रोजा 100%, तेरा रोजा 70% है, मेरा रोजा जो है 90% है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, जैसा रोजा उसका वैसा रोजा आपका भी है। तो रोजे में इंसान रियाकारी नहीं करता। इसीलिए रोजा एक ऐसी इबादत है कि जो रिया से यानी दिखावे से पाक है। और आप जानते हैं कि जो इबादत दिखावे से और रियाकारी से पाक होती है उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो रोजे की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इसीलिए कहा गया कि रोजा जो है वो एक बेहतरीन इबादत है। क्यों? इसलिए कि उसमें रिया नहीं है, रोजा दिखावे वाला नहीं है। और कहते हैं कि इसीलिए रोजा एक काम करता है। रोजे के एक आसार और है। एक रिजल्ट तो मैंने बताया था आपको, क्या? तकवा। दूसरा रिजल्ट रोजे का, दूसरा रिजल्ट क्या है रोजे का? इंसान को कवी करता है, यानी क्या? मजबूत करता है इंसान। जो शख्स भी वाकईन रोजा रख रहा है उसको परवरदिगार आलम ने रोजे में खासियत ये रखी है कि रोजा इंसान को ऑटोमेटिक क्या कर देता है? बहुत मजबूत कर देता है, कवी कर देता है। किस तरीके से कवी करता है? आप कहेंगे कि भाई हम तो सुबह अभी 15 घंटे का रोजा रख रहे हैं, इसमें वीकनेस आ रही है, कमजोरियां आ रही है, और आप कह रहे हैं कि रोजा इंसान को मजबूत करता है। नहीं, ये जो वीकनेस आपको आ रही है, ये वीकनेस जाहिरी है। कुव्वत दो तरीकों की होती है। एक कुव्वत क्या है? जाहिरी। एक कुव्वत क्या है? बातिनी। दो कुव्वत है। हो सकता है जाहिरन आप कमजोर हो रहे हैं, लेकिन आपका जो बातिन है, ये बातिन रोजे की वजह से क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है, कवी हो रहे हैं। अब अगर वाकईन जैसा हक है रोजे को रखने का, उस तरीके से आपने रोजा रख लिया, तो आपको वो कुव्वत परवरदिगार आलम अता करेगा जो कुव्वत पहले आपके पास में मौजूद नहीं थी। ये रोजा इंसान को कभी करेगा, मजबूत होगा इंसान। मजबूत होगा तो दूसरे जब काम करने होंगे, जब इंसान मजबूत हो जाएगा, यानी उसका नफ्स मजबूत हो जाएगा, उसकी रूह मजबूत हो जाएगी, तो इंसान जितने दिन के काम करता है किस चीज से करता है? अपने रूह से, अपने नफ्स से करता है। अब अगर इंसान मजबूत हो गया तो इंसान
नमाज पढ़ेगा। इंसान मजबूत हो गया तो इंसान हज करेगा। इंसान मजबूत हो गया तो इंसान खुम्स देगा। इंसान मजबूत हो गया तो इंसान ज़कात देगा। इंसान मजबूत हो गया तो जिहाद करेगा। इन तमाम चीजों के लिए कुव्वत लगती है। नमाज कुव्वत चाहती है, हज कुव्वत चाहता है, खुम्स कुव्वत चाहता है, ज़कात कुव्वत चाहती है, जिहाद कुव्वत चाहता है। आज आप खुम्स नहीं दे पा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि आपका नफ्स कमजोर है, आपकी रूह कमजोर है। यार इतना पैसा मेरे पास से चला जाएगा, 100 रुपया, उसमें से 20 रुपए दे दूंगा तो 80 रुपए मेरे पास बचे रह जाएंगे। क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? इसलिए कि आप कमजोर हैं। यही अगर आपके अंदर कुव्वत होती, आपके अंदर मजबूती होती, तो आप ये नहीं देखते कि 20 रुपया जा रहे हैं, बल्कि आप क्या देखते कि ये जिम्मेदारी थी जो परवरदिगार आलम ने मेरे ऊपर रखी थी, आज मैं उस जिम्मेदारी को अदा कर रहा हूं। ये कुव्वत आपकी रूह आपको देती। वो कुव्वत आपके पास नहीं है, इसलिए आप खुम्स नहीं दे पा रहे। कुव्वत नहीं है इसलिए आप ज़कात नहीं दे पा रहे। कुव्वत नहीं है इसलिए आप जिहाद नहीं कर पा रहे हैं। जिहाद के लिए जाहिरी ताकत की जरूरत नहीं होती। जाहिरी ताकत तो बहरहाल एक चीज है, एक उसकी छोटी सी शर्त है। बाकी जिहाद करने के लिए इंसान को बातनी कुव्वत की जरूरत पड़ती है। आज जिहाद का मतलब ये नहीं कि आप मैदान जंग में जाएं और लड़ें, सिर्फ इसी को जिहाद नहीं कहते हैं। जिहाद नफ्स से भी होता है, बहुत सी चीजों में जिहाद होता है। और उस जिहाद को करने के लिए इंसान को किस चीज की जरूरत पड़ती है? कुव्वत की और ताकत की। और वो ताकत इंसान को कहां से मिलती है? रोजे से मिलती है। ताकत देता है इंसान को रोजा। अब जिहाद करना है इंसान को, तो अब मिसाल के तौर पे आज आपने देखा होगा करबला में जनाब वहाब की मादर गिरामी है, जब उनके फर्जंद को शहीद कर दिया जाता है और उनके फर्जंद के सर को वापस दे दिया जाता है। देखिए इसको जिहाद बोलते हैं। जब सर को वापस दे दिया जाता है तो क्या करती है वो? उस सर को उठा के फिर से अशकिया की तरफ फेंक देती है और क्या कहती है कि जो चीज हमने राह खुदा में दे दी उसे वापस नहीं लिया करते। इसका नाम है जिहाद। वो थी जो जिहाद कर रही थी। कहां से कुव्वत आई थी? नफ्स से। रूह मजबूत थी उनकी, उनका नफ्स मजबूत था, तब जाके इस अमल को अंजाम दिया। इसको कहा जाता है जिहाद। और इस कुव्वत को अगर आपको हासिल करना है, अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपका नफ्स मजबूत हो, आपकी रूह मजबूत हो, तो आइए रोजा रखें। रोजा इंसान को कवी करता है। अब जब आपने रोजा रख लिया और आपको कुव्वत हासिल हो गई, तो अब माह मुबारक रमजान के बाद आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपके अंदर कुव्वत पैदा हुई है नहीं हुई। नमाज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि कुव्वत मिली, रूह मजबूत हुई। हज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि नहीं, रोजे से कुव्वत मिली। और माह मुबारक रमजान में रोजा रख लिया, रखने के बाद जब माह मुबारक रमजान खत्म हुआ तो ना नमाज है, ना हज है, ना खुम्स है, ना ज़कात है, ना जिहाद है, तो ये समझ लीजिए कि फिर रोजा भी नहीं था। आपका रोजा भी फिर बिल्कुल बेकार था। क्यों? इसलिए कि अगर वाकई रोजा होता तो रोजे से आपको कुव्वत मिलती, और जब कुव्वत मिलती तो इन तमाम कामों को आप अंजाम दे देते। ये हो गई दूसरा फायदा रोजे का, कि रोजा क्या करता है? इंसान को कुव्वत देता है। अब तीसरी चीज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोजा निस्फ़ सब्र है। निस्फ़ सब्र, रोजा क्या है? निस्फ़ सब्र है। सब्र के बहुत फजीलत बयान हुई है शरीयत में। सब्र बहुत अजीम इबादत है, लेकिन और रसूल खुदा ने क्या कहा कि रोजा निस्फ़ सब्र है। आधा सब्र आपको मिल जाता है किस चीज से? रोजे से। जब आप रोजा रखते हैं तो आपको सब्र करने की ताकत मिलती है। आधा सब्र, पूरा का पूरा आधा सब्र आपके पास में रोजे से आ जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सब्र मिलता है। सब्र यानी क्या? सब्र की भी वजाहत करते हुए आगे चलते हैं। आजकल जो उम्मन माना जो राइज है सब्र के, सब्र यानी क्या? सब्र यानी खामोश हो जाना। सब्र यानी खामोश। आज जालिम आपके पास आया और जुल्म कर रहा है, तो आपका साथी, आपका दोस्त, आपका हमसाया, आपके रिश्तेदार आपको तलकीन करते हैं कि सब्र करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो क्या यही माना है सब्र के? सब्र यानी खामोशी? नहीं, सब्र के माना खामोशी नहीं है। सब्र के माना क्या है फिर? सब्र जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने का नाम सब्र है, नहीं कि जुल्म के खिलाफ खामोश होकर बैठ जाए। आज जो भी हालात हाजिर आप देख रहे हैं दुनिया में, जो भी हालात हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कहा जाए सब्र करो यानी खामोश होकर बैठ जाओ, कुछ भी इकदाम मत करो, ये सब्र नहीं है।
सब्र के माना खामोशी के नहीं होते, बल्कि सब्र के माना बिल्कुल उल्टे हैं। सब्र के माना क्या है? सब्र यानी जालिम के मुकाबिल आ जाना, ये सब्र है। मजलूम की मदद करना, ये सब्र है। ये माना है सब्र के। लेकिन हम लोगों ने सब्र के माना को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। आज कोई हमारे ऊपर जुल्म करता है, लोग तलकीन करते कि भाई सब्र करो, खामोश रहो, जवाब मत दो। आज हक के मुकाबिल में बातिल आ जाता है। मिसाल के तौर पे आज खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स खड़ा हो जाए, इसलिए आज जैसा कि एक चीज उमूमन आप लोग देख ही रहे हैं, मुलाहिजा कर रहे हैं, अखबारियत एक चीज हमारे सामने है। अब अखबारियत के खिलाफ क्या कहते हैं? सब्र करो। बहुत से लोगों का ये तरीका है, कहते हैं सब्र करो, उनको उनका काम करने दो, आप अपना काम करो। नहीं, ये माना नहीं है सब्र के। अखबारियत के खिलाफ पूरी ताकत से खड़े हो जाना, इसे कहा जाएगा सब्र। ये सब्र है, ना ये कि खामोश हो जाना अखबारियत के खिलाफ। ये सब्र नहीं है। हक की आवाज को बुलंद करना नाम है सब्र का, ना ये कि हक को दबा के बैठ जाना सब्र है। नहीं, हक को दबा देना ये सब्र नहीं है, बल्कि हक के साथ में अपनी आवाज को बुलंद करना, वो है सब्र। और ये ताकत आपको कहां से मिलेगी? रोजे से मिलेगी। इसलिए कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि रोजा क्या है? निस्फ़े सब्र है, आधा सब्र है रोजा आपका। और उसके बाद में कहते हैं कि रोजा जो है अपने आसार दिखाएगा, लेकिन रोजे की किस्म है। एक रोजा नॉर्मल टाइप ऑफ रोजा, पहला रोजा नॉर्मल, दूसरा रोजा स्पेशल, तीसरा रोजा वेरी स्पेशल। और आगे बढ़ा दिया जाए उसको। 3 टाइप है रोजे के। एक नॉर्मल रोजा जो आप देख रहे हैं, वो रोजा क्या है? इस रोजे में क्या करते हैं आप? खाना पीना बंद कर देना, खाना पीना बंद कर दिया, बस। ये नॉर्मल रोजा जो आप देखते हैं, उम्मूमन पूरी दुनिया रख रही है रोजा। इस रोजे को कहते हैं एकदम नॉर्मल रोजा, रोजा है आदी। ये जो स्पेशल रोजा रख रहे हैं आप, इसमें कहते हैं कि खाने पीने के अलावा गुनाहों से परहेज, ये स्पेशल रोजा। यानी रोजे के साथ खाना पीने के अलावा गुनाहों से भी परहेज करना है, ये स्पेशल रोजा है जो लोग रखते हैं। और तीसरा रोजा क्या? खासुल खास, यानी क्या? दिल गैर खुदा से खाली हो। बहुत खास चीज है। 3 तरीकों से आप रोजा रख सकते हैं। एक तो नॉर्मल रोजा जो सब रख रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई असर नहीं होता इसका, ये रोजे का कोई असर नहीं है। इस रोजे का असर है, इस रोजे का बहुत ज्यादा असर है। पहला रोजा मैंने क्या बताया? जो सब रख रहे हैं। दूसरा क्या है कि आप रोजे में, जो हमने दूसरी क्लास में बयान किया था कि जो रोजा है उसकी किन किन चीजों से रोजा है, तो हमने बयान किया था कई चीजें, उन तमाम चीजों के साथ में मिला के रोजा रखेंगे तो इस रोजे को कहेंगे स्पेशल। और बहुत ज्यादा स्पेशल रोजा कब हो जाएगा? जब आपका दिल गैर खुदा से खाली होगा। यानी क्या? यानी आपके दिल में सिर्फ एक ही चीज होगी, और वो चीज क्या है? खुदा। दिल में कुछ ना हो सिवाय खुदा के। हर चीज खुदा के लिए, हर काम खुदा के लिए, हर चीज शरीयत के लिए, हर चीज दीन के लिए। इसको कहा जाता है वो रोजा कि जिस रोजे में आपका दिल गैर खुदा से खाली हो, हर अमल आपका सिर्फ और सिर्फ लिल्लाह, अल्लाह के लिए, हर अमल आपका अल्लाह के लिए। ये रोजा आपका रोजा बिल्कुल स्पेशल रोजा कहा जाएगा इसको। आज गैर खुदा से चूंकि दिल खाली नहीं है, अगर दिल में सिर्फ खुदा हो, दिल में सिर्फ क्या हो? खुदा। बहुत अजीब मंदिर,
बहुत अजीब मंजर। क्या कहते हैं, जैसे कि खवारिज थे इमाम अली के मुकाबले में जो लोग निकले थे, जंग सिफ्फीन से अलग हो गए थे वो लोग, उनका नाम क्या था? खवारिज। इनका नारा भी क्या था? ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह। ये तो कहते ना, हुक्म सिर्फ और सिर्फ खुदा का होगा। वो लोग ये समझ रहे थे कि हमारे दिल में सिर्फ खुदा है और कोई नहीं है। नहीं, ये गलती है। खुदा है, सिर्फ खुदा है, खुदा के अलावा हम किसी और को नहीं मानते। जब बात आती है कि अंबिया को मानो, कहते नहीं अल्लाह है तो अंबिया को मानने की क्या जरूरत। जब अल्लाह ने कह दिया अइम्मा को मानो, तो आप कहते हैं जब खुदा है तो अइम्मा को मानने की क्या जरूरत। नहीं, ये खुदा को मानना नहीं हुआ। आप जब किसी भी शख्सियत को या किसी हस्ती को मानते हैं तो क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई मैं फला शख्स को बहुत मानता हूँ, मैं आबिद भाई को बहुत मानता हूँ, मिसाल के तौर पे। अब आबिद भाई ने कहा कि मौलाना मेरा एक काम कर दीजिए, मैं कहूँगा नहीं करता। आबिद भाई ने कहा फला काम मत कीजिएगा मौलाना, मैं उसी काम को अंजाम दूँ। आबिद भाई ने कहा कि फला काम को अंजाम दीजिए, तो उसको अंजाम ना दे रहा हूँ, जिसको कहा कि अंजाम ना दो उसे अंजाम दे रहा हूँ। और उसके बाद में मैं ये कहूँ कि आबिद भाई मैं आपको बहुत मानता हूँ, तो आबिद भाई क्या कहेंगे, मौलाना ये कोई मानना हुआ? इसको मानना नहीं कहते। मानना किसे कहते हैं? जब आप मेरी तमाम ख्वाहिशात का एहतराम करें, है ना, तमाम ख्वाहिशात का एहतराम करें, उसी को तो कहेंगे ना मानना। अब खुदा ने कहा अइम्मा को मानो, आप कहते हैं अइम्मा को नहीं मानेंगे। परवरदिगार आलम ने कहा था ना, ये इमाम अली है, इमाम हसन, इमाम हुसैन पूरे अइम्मा है। परवरदिगार ने कहा अंबिया को मानो, नहीं मानते। परवरदिगार ने कहा कुरान को मानो, नहीं मानते। अब अइम्मा हुक्म दे रहे। खवारिज की गलती क्या थी? खवारिज क्या देख रहे थे? सिर्फ कुरान देख रहे थे कि जो नहजों पे बुलंद था, और कह रहे थे हमारे दिल में खुदा है। एक तरफ कौन थे? एक तरफ इमाम थे। इमाम कौन है? वो है जिनको मनसूस किया किसने? अल्लाह ताला ने, जिनके बारे में खुदा ने कहा कि देखो इनकी इताअत करना। तो यहाँ पे वो लोग इमाम की इताअत को छोड़ के क्या कह रहे थे? हम सिर्फ अल्लाह की इताअत करेंगे। तो ये मानना नहीं। वो अल्लाह कह रहा है कि मेरे बताए हुए कामों को अंजाम दो, आप कहते हैं कि तेरे बताए हुए काम को अंजाम नहीं देंगे लेकिन तुझे मानेंगे। ये खवारिज का यही नारा था, और आज भी ये नारा आपको दिखाई देता है। लोग ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी की इबादत नहीं करते। नहीं अजीजों, ये मानना नहीं है। मानना तो उसे कहते हैं कि जो अल्लाह ने कह दिया उसे तस्लीम कर लो। अगर अल्लाह ने कहा मुझे सजदा करो तो उसे सजदा करो। अगर अल्लाह ने कहा कि नहीं मेरे अलावा किसी और को भी सजदा करना है, जैसे कि परवरदिगार ने हुक्म दिया था जनाबे आदम को सजदा करने के लिए, तो इताअत की जब मंजिल आती है परवरदिगार की, वहां पे क्या करना पड़ता है? आपको सरे तस्लीम हम करना है। अगर यहाँ पे आप इज्तिहाद करने लगेंगे, अपने जहन को चलाने लगेंगे, अपने माइंड से इस्तेफादा करने लगेंगे, तो आपका भी वही अंजाम होगा जो शैतान का होगा। शैतान ने भी अपना दिमाग यूज किया था। क्या कहा था कि मैं आपसे बना हूं, ये मिट्टी से बना है, मैं तेरे सामने सजदा करता हूं, इसके सामने सजदा क्यों करूं? तो परवरदिगार ने क्या कहा था कि मेरी बारगाह से निकल जा। तो जब इताअत परवरदिगार की बारी आती है तो वहां पे सरे तस्लीम हम करना है। जो परवरदिगार ने कह दिया उसे तस्लीम करना। वो उसने कहा कि मुझे सजदा करो तो उसे सजदा करो, उसने कहा आदम को सजदा करो तो आदम को सजदा करो। इसी का नाम इताअत है। और जब इस तरीके की इताअत करेंगे और इस तरीके से आपके दिल में खुदा होगा, तो आपका जो रोजा होगा वो वेरी स्पेशल होगा। तो 3 तरीके को रोजा हमने बताया, एक नॉर्मल, एक स्पेशल, एक बहुत ज्यादा स्पेशल। ये हो गया आसार। तो 2 असर हमने आज आपको रोजे के बताया। पहला असर क्या बताया? तकवा। दूसरा असर क्या बताया? बताइए भाई, दूसरा असर क्या बताया? तकवियत। रोजे से इंसान को पावर मिलता है, एनर्जी मिलती है। वसल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। एक सलावत पढ़ें।